ये सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम आया, साल का सबसे ठंडा मौसम, जो जनवरी में शुरू होता है और फरवरी में ख़त्म हो जाता है। इस मौसम में पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर लगता है। धन्यवाद। गर्मी का मौसम साल का सबसे गर्म मौसम है। भारत में यह मौसम अप्रैल से मई तक रहता है। इस मौसम में बड़े दिन रहते हैं। इस मौसम दिन के समय बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। वर्षा ऋतु को मानसून का मौसम भी कहा जाता है। इस मौसम में वर्षा प्राप्त होती है। भारत में यह मौसम जुलाई से अगस्त तक रहती है। इसकी शुरुआत हमारे देश के दक्षिणी भाग से होती है। नेक्स्ट कौन है? नाउ बोलो बेटा। मार्च से अप्रैल में आता है। इस मौसम में इस मौसम में पेड़ पौधों पर हरी हरी पत्तियां तथा रंग बिरंगी फूल। My name is Shalu. I study in class 2nd. Aeroplane and helicopter are means of air transport. Aeroplanes are the fastest but also the most expensive means of transport. Helicopter can travel to places where there are no good road, and aeroplane cannot land. Thank you. Air transportation, land transportation, and this is Water transport. and this is railway. रेलवे बोलना पड़ेगा, बता करके आपको ना कि ये क्या क्या है, बताना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल सारे जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में। कौन सा वाला ज्यादा यूज? हाँ गेस, सोचो। लैंड। ये देखो रेलवे। We travel on river and lake by boats, motor boats, and steams. Ships are used to long distance on the sea. We can go from one country to another by a ship. Thank you. Buses, cars, scooters, cycle, truck, train, and the metro rail are some means of land transport. Good morning. My name is Ara Singh. I study in class first. A plant has many different parts that perform various functions. Parts of plant are bud, fruit, कौन सा stem, बताओ, कहाँ है बताओ ना, बताओ टच बताओ। fruit, stem, leaf, flower, and root. थैंक यू। वेरी प्रिटी Thank you. नेक्स्ट। Good morning, sir. My name is Chandrit. I am studying class first. Root is below the ground. So what is this? सर ये अलग है, ये अभी रूट्स के बारे में बताओ। अच्छा आपको पीछे वाला? अच्छा तीनों है। ओके। And stem is above The land. lands. My name is Garima. I study in class first. Good morning, everybody. We are representing. We are Sense organs. science. Through our science organs project, as we all know, we have 5 science organs. They are eyes, ears, nose, tongue, and skin. Eyes, we can see things around. For example, color and shape. Ear, them we hear. It helps us to different type of
Nose. Plant. Third organ is nose. In nose, it helps us Smell. to smell different things. Tongue. This is the fourth organ, which it is all over our body. We can feel things hot, cold, soft, hard, etc. by touching it. Thank you. All these of science organs of our body make our life easy. Thank you. Very good. बहुत बढ़िया. Good. Very good. दीपक, आर्यन, सूरज and दीपक जो बोल रहा हूँ. Good morning, sir. Myself Abhinav, and these are my friends Deepak, Suraj, Aryan, and Deepak. We together made this project. The name of this project is Human Following Robot. This project based on the functions of microchips. Microchips are the processing unit which works 10 times faster than normal human brains. These are the ultrasonic sensors which measures the distance between the sensor and our hand, and these are IR sensors which detect the motion of our hand in the front of these lights. These white light transmitted the IR rays and black light receives it. So this is the motor cell which control all the components of the motors, and this is the Arduino based so Arduino Uno which contains all the programming of this project. So let me show you how it works. आगे आगे करो, हाथ को आगे करो. और कौन एक्सप्लेन करेगा? बस एक हिंदी बोल दो. इसी चीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर देना. एक हिंदी में बताएगा, एक इंग्लिश में, हिंदी में. दो ग्रुप बना लो. आइए अगेन एक्सप्लेन. Good morning, sir. Sir, myself Abhinav, and these are my friends. We all together made this project. The name of this project is Human Following Arduino Robot. This project is based on the concept of microchips. Microchips are the processing units which works 10 times faster than human normal brain. Sir, this is the ultrasonic. So microchips. So these are the microchips. These are Atmega 328P microchips that are made by the company Atmega. So this is the ultrasonic sensors which measures the distance between the sensor and our hand, and these are the IR sensors. Arduino is based on microcontroller. Yes, sir. Sir, this is the IR sensors which detect motion of our hand. So this. Very good. बाकी हम तो यही कर रहे हैं. हम लोग कर लेते नहीं. Team Anshuman, Aditya, Neeraj, and we make a sewer water treatment plant. करण पवार, अंशुमन, आदित्य, Neeraj, बस यही. Ajay. अजय. हाँ. प्रोजेक्ट नेम Sewer water treatment plant. प्लास्टिक सॉलिड बिग इम्प्योरिटीज, फिर उसके बाद जो और भी बच जाएंगी वो इसमें आएंगी, इस वाले टैंक में. इस वाले टैंक में आगे के बाद ये नेट से और साफ होकर इस वाले टैंक में आएंगी. Myself Anurag. Myself Raj. Myself Sachin. We have used to make this Raj. Bhupen. JCB. We have used to make this JCB like syringe, cardboard, and wood and pipe, etc. As we know, JCB is used to lift heavy loaded loaded thing, and is also used to digging the ground and fill the ground. It's also used to destroy the building and construct the building. Yes, sir. सर हम इसका यूज बहुत सारे कामों में कर सकते हैं, जैसे लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एनी समथिंग डिस्ट्रॉय लाइक. और हमने इसको बनाया है इंजेक्शन की मदद से, और ये पाइप लगाई हमने. बेसिकली न्यूमेटिक. Waste. Today we have prepared a vacuum cleaner with the help of plastic bottle motor battery. As we know that it is used to clean dirt from walls and floors.
we had created a low pressure area inside. वैक्यूम क्लीनर है Yes, sir. यस। आवेश और कौन कौन है आपकी टीम में? Yogesh, लक्ष्य Lakshya, Naman. Good morning, sir. Welcome to Science Education. Hello, Science Education. प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Sir, 3D animation. कैसे इसको चलाएंगे? सर ये जो फोन है, फोन को हम नीचे मतलब तो जब हम ऊपर रखते हैं तो वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो गिलास और तो बैग है वो है ना ऑब्जर्व करके दिखाता है। गुड मॉर्निंग अनु सर। अनु, यस सर। इट्स योर सोलो प्रोजेक्ट? यस सर। क्लास सर 10th। जो आपने कुछ स्पेस में जहाँ पे कोई मीडिया नहीं हो ना, वहाँ पे कुछ करते हैं ना तो होलोग्राम होता रन ऑफ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, नॉट हाइड्रो। हाइड्रो सर। व्हाट पावर इज हाइड्रो पावर? सर ये घूमेगा, टरबाइन करेगा तो सर वो चलेगा। टरबाइन घूम क्यों रहा है? सर वो इसमें प्रेशर चाहिए सर, ज़्यादा मतलब वो मोटर नहीं मिला तो ज़्यादा इसमें प्रेशर चाहिए सर। सर घूमेगा तो लाइट करेगा। तो बोतल भर जाएगा आपका? यस सर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। टेबल था हमारे पास। सर साइकिल इन्हें दिखाना था ना, मेन साइकिल सबसे बेस्ट यही है। इसका पार्ट है, पार्ट है, पार्ट ऑफ sir this is mechanism in which sir when we roll this सर ये जो प्रोसेस सर ये डैम्स में यूज होता है सर, जो है ना अल्टरनेटिव करंट को सर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है सर। जो इसके अंदर टर्मिनल लग रहा है सर, ये डीसी मोटर है सर, जो कि डायरेक्ट करंट में सर कन्वर्ट हो जाती है सर। सर ये सर यूज होता है सर डैम्स में और क्या कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स में सर। इसके द्वारा सर हम घर बैठ के सर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं सर। सर जैसे कि आप देख सकते हैं सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है सर। वो इलेक्ट्रिसिटी सर बैटरी चार्ज हो जाती है सर और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है सर। स्टोर करते हैं ये सर, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर देता है सर वो। Student of class 10th, myself Lakshya. Myself Sunana. Myself Rashmi. Myself Sonam. As we know, we are celebrating National Science Day, so giving respect to this day, we are prepared a project on human excretory system. I'm going to explain about kidney. Kidney are bean shaped structure located in either side of the backbone. Kidney का जो shape होता है वो bean shape का होता है और जो हमारी backbone होती है वो उसके दोनों साइड present रहता है। एंड वो 10 to 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विथ मतलब उसकी चौड़ाई होती है, 1 to 50 to 1 to 70 ग्राम उसका वेट होता है। वैसे तो यह जीवन भर साथ देती है, परंतु कुछ नशीले पदार्थों आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट यूरेथ्रा होता है। वो हमारा जनरली जो हमारी यूरिन का कलर होती आने लगता है, जो ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल में कम होता है। इसलिए भगवान के द्वारा दी गई किडनी को हमें अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, अन्यथा आपको अपना जीवन डायलिसिस के द्वारा निकालना पड़ेगा। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी द्वारा खून को प्योरीफाई किया जाता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत पेनफुल भी होता है। इसलिए हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और ज़्यादा देर तक यूरिन को स्टोर करके नहीं रखेंगे। और क्या बोलते हैं myself Ashita, myself Tanishka, myself Sugandha, myself Ahani. Today we are celebrating National Science Day. This is why we have prepared this project on cell phone radiation. As you all know that technology plays a significant role in our daily life, and that has made our life very easy. Cell phone is such a device that makes our life very easy.
today there are millions of cell phone users in the world. To provide proper services to the growing customer base, companies have set up several towers in the world. Cell phone tower receive or send signals to or from the cell phone. Use the cell phone. It produce electromagnetic waves. This is also known as radio frequency. और जब हमें कहीं भी टावर लगाना होता है तो ये होता है कि घर के आसपास लगाना होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए. हमें ऑलमोस्ट 150 to 270 फीट के ऊपर से ये टावर्स लगाने चाहिए. It is very harmful and dangerous. Causes isolation in people, difficulty, depression, sleeping, and anxiety. It is harmful pregnant lady and also affect the birds. So we are suggesting to the government the cell phone, जो हम cell phone towers को अपनी छतों के ऊपर लगवा देते हैं क्योंकि हमें मंथली उसकी पैसे इनकम मिलते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर उस घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उसके बेबी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं टावर की रेडिएशन की जो वेव्स होती हैं. और अगर कोई चिल्ड्रन उस घर में रहता है तो चिल्ड्रंस के माइंड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो उनके माइंड फिर डेवलप में नहीं हो पाता है. और हमारी जो सेल फोन टावर की होने चाहिए वो कम से कम हमारे सोसाइटी एरिया से 500 मीटर्स अवे होना चाहिए एंड इसकी नॉर्मल हाइट 150 to 270 फीट की ऊंचाई पर रहना चाहिए और हमें कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए. थैंक यू. वजह से उनका भी जो उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर फैल जाते हैं, उस वजह से वाटर भी पल्यूटेड होता है. इंडस्ट्रीज़ में जो गार्बेज होता है वो गार्बेज अक्सर इंडस्ट्रीज़ रिवर में डाल देती है, उस वजह से भी रिवर पल्यूटेड होता है. Class 7th, we made a quiz board with the help of cardboard, nails, battery, wire, switch and LED light. If you tell the right answer of the question, the bulb will glow, otherwise not. So please try it. Sir, ये यहाँ पे नेट पे लगा देना. Answer. Sir, this is a question. ताकि हम समझा सके कि ज़्यादा फैक्ट्री होने से ज़्यादा पोल्यूशन होगा और ज़्यादा पोल्यूशन होने से हमारी धरती तबाह होती जाएगी. और हम धरती में से जो ऑयल निकालते हैं इसके कारण कई बार धरती में भूकंप आ जाता है जिससे सब कुछ तहस महस हो जाता है और पानी पीने लायक शुद्ध नहीं रहेगा, पेड़ सूख जाएंगे. लेकिन अगर हम धरती से इको फ्रेंडली बन के रहे. माय नेम इज़ ध्रुव सर. सर और सर अगर हम ध्यान देंगे अच्छे से इस पे तो हमारी सिटी अच्छी रहेगी, पेड़ हरे भरे रहेंगे, पानी पीने लायक शुद्ध रहेगा, बच्चे पार्क में जाके खेलेंगे तो उन्हें कोई बीमारी होने का डर नहीं है. माय नेम इज़ दुष्यंत. मैं ना कक्षा 6ठी का छात्र हूँ. इस प्रोजेक्ट का नाम चॉकलेट वेंडर है. ये प्रोजेक्ट कार्डबोर्ड से बनाया गया है और इसके अंदर चॉकलेट डाली जाती है. एक बटन के माध्यम से चॉकलेट बाहर आती है और एक बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता दुकान मॉल पर, और है ना ये घर पे ही बनाया जा सकता है. यहाँ एक 3 कार्डबोर्ड्स होते हैं और इसके अंदर टॉफियाँ रखी जाती है 3 डब्बों के अंदर. फिर ये अंदर जब जाता है तो टॉफियों को गिराता है और नीचे से ले सकते हैं. सर मेरा नाम प्रियांजल है. हम कक्षा 6ठी का छात्र हैं. हमारे प्रोजेक्ट का नाम रोबोटिक आर्म है. यह रोबोटिक आर्म एक प्रकार का यांत्रिक है. यह रोबोटिक आर्म उन व्यक्तियों के लिए है जो छोटे हाइट के होते हैं, उनको सामान उतारने में दिक्कत होती है या फिर परेशानी होती है, उसमें ये सहायता करते हैं. धन्यवाद. सर इसके ऊपर ऐसे कोई किसी चीज को रख दो और ये उसको दूसरी जगह पर रख दो. My name is Dipesh from class 6th. We are presenting city life and village life. विलेज के लोग साधारण जिंदगी जीते हैं और एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं और एक साथ सारे त्योहार बनाते हैं. और विलेज में ज़्यादातर किसान रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं. City life is a very modern life. There are a lot of personality for people in the cities. City life is a more
कंप्लीशन देन विलेज लाइफ। शहर में लोगों के लिए काफी सुविधाएं मौजूद हैं। Good morning, sir. My name is Arpit. We are studying in class. We represented in a windmill in Hindi. बहती हुई हवा के उत्पाद के लिए बिजली का उत्पादन करना यह यंत्र है विंडमिल। विंडमिल से बिजली का उत्पाद कर हम प्रदूषण हवाओं को कम कर सकते हैं। यह एक साधारण यंत्र है जिससे वीर गति को यांत्रिक गति में बदला जा सकता है। इसके ब्लेड घड़ी की दिशा में घूमते हैं। थैंक यू। cooling pads. Thank you. Have a nice day. कूलर